it's recording. Okay. Yeah. Okay, so I welcome you all on our chat show series from Generation Y to Generation Alpha, and we have Miss Jyotika Badyal with us. She is a casting director associated with Punjabi film industry. She is a writer, a traveler. She has a YouTube channel named as Chai Stories with Jyotika. Yeah. The tea, Chai Stories with Jyotika. She advocates gentle parenting, and she's here because she's a super mom in my thoughts, in my ideas, whatever I'm following her reels. She's a super mom of a 30 months old super kid called, his name is Kabir Sood. She's having an Instagram channel named as Tintin Ka Bachcha, which is having 192,000 followers. Such a huge fan following she is having. And in this channel, she shares daily activities of Kabir with her followers. Kabir is her son, and Kabir is a super kid. I'm really means he's an adorable child. Before beginning our chat show for today, I'll take just few minutes to introduce this platform which we have initiated. It is entitled as Inspirational Journey from Generation Y to Generation Alpha. The title itself indicates that Generation Y, also called as millennial generation, and it includes all those human beings born between 1981 to 1994 and 96. Currently, they are in between 25 to 40 years of age. That means you all parents sitting over here fall in Generation Y. And the kids born between 2010 to 2024 is called as Generation Alpha. Next will be Generation Beta, and this will go on. So we created this platform for all the budding talents, and we invite their parents to inspire the parents of our school kids with the motto of focusing on holistic development of our kids. So once a month on any of the Sundays, we present a celebrity kid along with his parents on our chat show. However, today chapter 7 is scheduled on Saturday, as Jyotika is occupied with her family routine on Sunday. So, but still, in spite of her very busy schedule, she could find some time for us today. So thanks a lot, dear Jyotika, for giving us time and coming over here for our parents. I'm sure our parents will surely get inspired by your tips on mindful parenting. They are also following your channel at Tintin Ka Bachcha. I think since last 2-3 months, I have shared your profile with our parents so that they can follow. So, Jyotika, I have lots of questions. Shall we begin? Yes. I'm very Question grateful, answer round. Monica. Thank you so much for inviting. And you said that I am a super mom. I think every mother, हर माँ अपने तरीके से super mom है. There are things that I am able to do और कुछ चीजें जो मैं नहीं कर पाती हूँ, कर सकती हूँ या टाइम नहीं मिलता, कुछ और mothers वो कर रही हैं. Yeah, so I'm very much looking forward, to this chat show. Yeah, mom to become a mom. माँ बनना अपने आप में ही एक super duper work है, super duper job है. बिल्कुल. Okay, so Jyotika, how it all started means how this idea popped up to share Kabir's activity. कैसे ये दिमाग में आया कि कबीर की activity पूरे world में share करना चाहिए, and why you chose this name Tintin का बच्चा? Okay. तो ये टिंटिन का बच्चा नाम पहले मैं बता देती हूँ. एक्चुअली टिंटिन इज माय हस्बैंड का घर का नाम. और ये जो हैशटैग है टिंटिन का बच्चा, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने जब कबीर हुआ था तो उन्होंने टिंटिन का बच्चा एक हैशटैग बनाया जो बहुत क्यूट एंड बहुत फनी सा था. So I thought, okay, let's just start the page for Tintin ka bachcha. I did not share उसका फ्रॉम डे वन से मैंने शेयर नहीं करी उसकी जर्नी. आई थिंक ही वाज अराउंड 16 months or so, 15-16 months when I started this page. Initially I wanted to just record a digital diary because obviously आने वाले टाइम में हर बच्चा जो भी है, मतलब आप इसको दूर तो नहीं रख सकते इंटरनेट को बच्चों से, राइट?
So I thought like why not just एक जगह पे इसकी सारी कुछ activities और वो मैं share कर दूंगी तो so that he can come back and look at it. One of the main reason was that मेरे बचपन की बहुत कम photographs हैं. So मुझे कभी कभी मन करता है कि देखने का कि मैं बचपन में थी, क्योंकि बातें कहानियां सुनती हूँ या कुछ है तो मुझे बहुत मन करता है कि देखने का खुद को. तो वो मेरे पास में लग्जरी नहीं थी, एंड आई थॉट व्हाई नॉट लाइक डू इट फॉर माय सन. सो आई स्टार्टेड डूइंग इट. इनिशियली जब पेज पे हम लोग ऐसे रैंडम वीडियो में इसकी डालती थी, कुछ फन वीडियोस है ऐसे. देन धीरे धीरे इसका एक वीडियो थैंक यू मम्मा बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, बिकॉज ही इज अ फूडी. He loves food, and we used to practice gratitude with him. I think वो 6 महीने का था, मैं तब से उसके साथ gratitude practice करती थी. So when he started speaking, 10-11 महीने में 1-2 वर्ड जब उसने बोलना शुरू किया तो one of the first word was gratitude as well, thank you. So it was very nice, a little baby, saying thank you. So I shared those videos. Yeah. And then people started asking me कि how is he saying, आपने क्या किया, कैसे सिखाया इसको. फिर मैंने आई थिंक 17 महीने का था तब 1-2 मैंने एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन की वीडियो डाली जो ये रिपीट करता था. Then I thought of like, instead of sharing just random videos, why don't I talk a little about my journey, that how I am doing this with Kabir. So with that intention, I started posting all the whatever post reels or videos. So that was the intention behind it, that why not, if something is helping me, it can help another mother also, another parent as well. क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, लाइक आई सेड कि हम ना तो पुराना बिल सब कुछ चाहते हैं, हम वो कुछ साइकिल तोड़ना भी चाहते हैं, कुछ चीजों का, और कुछ नया बनाना चाहते हैं. तो क्योंकि मैं आई एम अ स्टे एट होम मॉम राइट नाउ. आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माय वर्क and I was totally focused on this. So I thought that, okay, let me just share it with other mothers, other parents as well. So this is how the page started basically. Yeah. So Jyotika, you mentioned the word gratitude. आपने 6 महीने के बच्चे के साथ में कैसे gratitude practice start किया? Because उस वक्त ना वो अच्छे से सुनता है, ना वो अच्छे से respond कर पाता है. तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अभी हम जो बोल रहे हैं वो समझ भी रहा है, सुन भी रहा है, रिपीट तो कर नहीं पाएगा अभी. सो कैसे आपके दिमाग में ये आया कि अभी से उसके साथ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए? तो व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मैंने 2 वीडियोस देखे थे जब मैं एक्सपेक्टिंग थी. एक था द बिगिनिंग ऑफ जर्नी और दूसरा था बेबी. दोनों जो ये डॉक्यूमेंट्रीज हैं ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं. सो व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैंने ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी और आई वाज माई सेल्फ शॉक्ड टू नो कि हमें ये लगता है कि बच्चा अभी रिस्पॉन्ड नहीं, अभी तो छोटा है, बोल नहीं पा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, उसको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बट किड्स आर ग्रेट ऑब्जर्वर. जब वो इन्फेंट है, जब वो बेबी स्टेज में है और वो सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ रजिस्टर कर रहे हैं. आपकी टोन, आप कैसे बात कर रहे हो, वो आपकी टोन से वर्ड्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं. तो दैट डॉक्यूमेंट्री हेल्प मी सो मच एंड आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डे वन. आई एम गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन कम्युनिकेशन. सो वन ऑफ आर हमारी जर्नी का, मेरा और कबीर का अगर मैं बात करूं, तो जर्नी का प्लस पॉइंट ये है कि हम बहुत कम्युनिकेट करते हैं और शुरू से करते हैं. बिकॉज आई राइट एज वेल एंड आई एम अ स्टोरी टेलर ऑल्सो. सो मुझे कहानियां सुनाने का बहुत शौक है. तो मैं मतलब आई थिंक 3-4 मंथ से उसको स्टोरीज सुनाती थी. आई एम नॉट अ सिंगर, सो आई वुड नॉट सिंग टू हिम. कुछ ललाबाई और ये सब मैं गाती नहीं थी, बट आई वुड जस्ट टॉक और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में. एंड आई वुड सी दैट ही इज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग. वो वर्ड नहीं, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट वर्ड्स. मतलब आप बात शब्दों से ही कम्युनिकेट नहीं करते हो. आप जो बाबल करते हैं बच्चे, आ ई बोल रहे हैं, हैंड का जेस्चर यूज कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, ये सारे कम्युनिकेशन है. तो इस कम्युनिकेशन को इसलिए कई बार जब सम पेरेंट्स से कि हमारा बच्चा तो अभी तक बात नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, कुछ बता नहीं पाता है, तो हम इतना फोकस्ड हैं वर्ड्स के ऊपर कि हम जो बाकी चैनल है कम्युनिकेशन के, उनको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं.
So because of those two videos, like I mentioned, I decided that I'm going to be very mindful. क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन है 4 to 5 years तक बहुत रैपिडली डेवलप करता है. अब ये हमारी पुरानी जनरेशन को नहीं पता था. तो उनको नहीं आइडिया था. वो वेट करते थे कि जब बच्चे बात करने लगेंगे हम तब सिखाएंगे. पर एक्चुअली बच्चा तभी से सीख रहा होता है जब वो द डे ही कम्स. अब आप देखो ना, बच्चा कैसे, उसको दूध पिलाना जैसे बच्चा होता है, वो अपने आप ही उसको पता होता है, उसको स्मेल समझ में आती है, वो पीना सीख जाता है ना अपने आप ही. जब रोता है बच्चा तो जैसे ही उठा के आप उसे थोड़ा सा घुमाते हो तो वो चुप हो जाता है. सो वो साइंस दे रहा है कम्युनिकेशन के आपको. आप और आप समझ भी रहे हो. अब उसे कोई चीज पसंद नहीं आती है, 6-8 महीने में जब आप सॉलिड्स खिलाते हो, उसको कुछ अच्छा लगता है तो वो खाता है, नहीं खाता है तो वो मुंह बंद करता है, फेंकता है. दीज आर साइंस दैट ही इज सेइंग दैट आई डोंट लाइक दिस फूड. या फिर उसका पेट भर जाता है तो भी वो खेलने लगता है. तो हम लोग फिर भी फोर्स फीडिंग करते हैं. हमें लगता है खाया ही नहीं बच्चे ने, इसको क्या पता होगा, अभी तो इतना छोटा है, इसे क्या समझ में आएगा, अभी इसको खिलाना है. बट बच्चे इंट्यूशन के साथ पैदा होते हैं, एक्चुअली बहुत इंट्यूटिव होते हैं. हम लोग फोर्स करके चीजों को जबरदस्ती उन पर थोप कर हम उनकी इसको किल कर देते हैं. उसके बाद में बच्चा डिपेंडेंट होने लगता है हम पे. कि अब मतलब इंस्ट्रक्शंस मिलने के लिए वो वेट करने लगता है. अदरवाइज अगर आप उनकी इंट्यूटिवनेस को मतलब बढ़ाओ और आप थोड़ा स्टेप बैक लेके ऑब्जर्व करो, जब आपको लगे कि बच्चे को हेल्प की जरूरत है, और वो साइन देता है हेल्प के लिए भी, इवन अगर वो बोल नहीं पा रहा है, वो आ ई करके बोलेगा, आपको बताएगा कि ये चाहिए, अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा. So you need to I mean, like, this is what I was saying, that it's not that the communication. So this is how I started. I started talking to him. I started speaking about when I'll do his massage. So I'll say, I'll do gently. So now when I was doing massage, तो उसको समझ में आया कि gentle का मतलब ऐसे, उसको word का literal meaning नहीं पता है. But उसको ये समझ में आ गया. तो अब क्या हुआ कि कभी वो मुझे मान लो जैसे 8-9 महीने के बाद में बच्चे बाल खींचते हैं. These are all again sign of communication. पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं, बट ये डेवलपमेंटली बहुत नॉर्मल साइन है टॉडलर का. बाल खींचना, दांत काटना, सब कुछ नॉर्मल है ये. मगर आप क्या कर सकते हो, तो जब वो मान लो मुझे स्क्रैच कर रहा है, सो आई वुड टेल हिम जेंटली बिकॉज अब मैं 6 मतलब शुरू से उसको वो वर्ड उसके साथ में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसको समझ में आता है. मैं उसका हैंड पकड़ के आई डू जेंटली, सो ही अंडरस्टैंड दैट. देन विद ग्रैटिट्यूड, जब भी मैं उसको शावर देती थी, शावर के वक्त में नहलाने के बाद में उससे बोलती थी, ओके लेट्स से थैंक यू टू बकेट, थैंक यू टू मग, थैंक यू टू वाटर. जब आप ये चीज रिपीट करते रहते हो बच्चे के साथ में, तो वो अपने आप जब बोलने लगता है तो वो अपने आप इन चीजों को पिक कर लेता है, क्योंकि उसके ब्रेन में पाथवेज बन जाते हैं. क्योंकि इतना रैपिडली ग्रो हो रहा है उसका ब्रेन. सो this is how I started. Matlab, I did not wait for him to start speaking. I started before that only. That's why he is much ahead. Means उसकी एज ग्रुप के बच्चों के साथ देखो तो वो बहुत आगे, बहुत सारी चीजें उसको समझ में आती है पहले से ही. और मे बी बिकॉज आपने उसको वो टाइम नहीं वेस्ट किया. आई वुड से कि शायद हम जो शुरू का टाइम होता है वो वेस्ट कर देते हैं, आपने उस टाइम को भी यूटिलाइज किया है, इसीलिए शायद वो इतना आगे. As I tell our parents also कि इस वक्त उनके न्यूरॉन्स इतने रैपिडली जनरेट हो रहे हैं कि हमको उनके एक न्यूरॉन, एक सेल को कैप्चर करना है विद इंफॉर्मेशन. तो आप जितनी ज्यादा उनसे बात करते जाओगे उतना उनका वोकैबुलरी, उतना उनका थिंकिंग बढ़ता जाएगा. सो दैट वाज रियली अप्रिशिएबल, बिकॉज इस वक्त हमको पेशेंस रखना होता है. भले ही बच्चा रिस्पॉन्ड करे ना करे, आपका काम है बस कम्युनिकेट करते जाना, आपका काम है बस बोलते जाना. यस, राइट. So Jyotika, one more thing I would like to ask you, does age of the mom matters? Means कब बच्चे हम यदि कम एज की मदर्स बन जाते हैं, hardly 23 या 24, and when you grow up and then you have a child with you, how does it matter? Does it really matter? I think it all depends कि आप कितना aware हैं. Whether आप, there are a lot of young people जो मुझसे ज्यादा अवेयर हैं, 20, 21, 22, 23, 24 साल में भी आपकी अवेयरनेस कितनी है. और बहुत लोग हैं जो मेरी एज में, आई बिकम अ मदर. प्लीज म्यूट पेरेंट्स, प्लीज म्यूट. So I became a mom at the age of 33.
yeah, 33 or 34, I don't know, 33 I think. I became a mom very late according to the Yeah. right? But it was not in my case, fortunately, we were not really ready. I was not ready to be a mother. I really wanted to take a break. So for 7 years, we got married in 2011, 12, 12. So I took that time. I took a break of, now I think अब third year start हो गया है मेरा break लिए हुए. तो मैं चाहती थी break लेना काम से. उस वक्त I wanted to plan. So it was a very conscious decision in our case that we wanted to plan at this time. Yeah. Then what really matters is that how physically active you are, because that is one thing that I feel somewhere when you plan late, if you're not physically active, so then it can be a challenge, because with toddler you need a lot of energy. Patience and calm तो आपको रखना ही है, मगर आपको energy भी बहुत चाहिए. So that could be one of the reason, like if you want to plan early pregnancy, that would be the reason I would suggest. But apart from that, it all comes down on awareness, plus what is your goal, in the sense that हम पेरेंट तो जैसे हमने कंसीव कर लिया, बेबी हो गया, उसके बाद में some of us are so eager to get back to work, right? Some of us, I'm not commenting, not saying that you should not work और कि आप काम मत ना करें, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप बहुत कॉन्शियसली डिसीजन ले, अगर आप ले सकते हैं. हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं होती कि हर कोई काम छोड़ सके, सो दैट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल. बट इफ इट इज पॉसिबल कि आप कुछ कॉन्शियसली डिसीजन ले सके, तो क्योंकि ये जो शुरू के 5-6 साल है ना, ये बच्चे को अगर आप दे सकते हो अपने 5 to 6 years शुरू के, और दे सकते हो से मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि हाँ मैं मन मार के नहीं. सो अगर आप क्योंकि सी आप एक यू नॉट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, यू आर एक्चुअली रेजिंग अ ह्यूमन, जो हमारा भविष्य है, सिटीजन ऑफ द कंट्री. सिटीजन ऑफ द कंट्री. सो अगर हमें आज के सोसाइटी में कुछ चीजें, कुछ त्रुटियां लगती हैं, या कुछ लगता है कि अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे क्यों बात करते हैं, सब कुछ, तो आपके पास में एक मौका है बेसिकली उन चीजों को कुछ हद तक ठीक करने का. So this is what matters, like your how conscious you are, how aware you are, that really matters more than the age. Right. Yeah. And how much time devoting it is, means mindful parenting के लिए एक तो हमारी अवेयरनेस होना चाहिए, प्लस टाइम कितना ज्यादा हमको देना चाहिए, कितना फोकस रहना चाहिए, या फिर हमको कुछ पूरा प्लान करना चाहिए डे, मॉर्निंग से इवनिंग. हाउ डू यू प्रोसीड विद दिस? So I do not believe in strict schedules. There is no fixed schedule, Kabir ka. There is a routine. Everything I follow with the rhythm. I let him lead me. अभी कबीर 32 months का हो गया है. So 32 months में अभी तक हम लोगों ने ABC पढ़ना या 1 2 3 बैठ कर उसको मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है. एवरीथिंग इज वेरी प्लेफुल मैनर में. अगर वो कुछ उसका स्क्रीन टाइम होता है, या फिर जैसे हम आई रिमेम्बर 1 2 3 हमने कैसे पढ़ना शुरू किया, हम स्टेयर्स उतरते थे, तो आई वुड स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 10, एंड दिस इज, हम ये अगेन रूटीन प्रैक्टिस. आपको रूटीन में प्रैक्टिस करना है, स्केड्यूल नहीं है कि सुबह 7 बजे उठाना है और उसके बाद में उसको 9 बजे सुलाना है. हाँ, ये है कि मॉर्निंग में जब वो उठ जाए तो उसके 2 घंटे में मुझे उसको चलो कुछ ब्रेकफास्ट खा ले, क्योंकि बच्चों को एनर्जी बहुत चाहिए होती है, तो 2 hours में कुछ मैं उसे देती रहूं. इस तरीके की एक रूटीन है. बट आई डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ ऐसा कुछ चार्ट पेपर बना के और डेली का कि आज इसको ये खिलाना है और ये करना है, मैं ऐसा कुछ टाइम नहीं करती हूँ स्पेंड उसके साथ में. बहुत ऑर्गेनिक टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग. आई एम डूइंग समथिंग, जब मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं जब छोटा था तो आई वुड जस्ट कीप सम बर्तन पास में. he'll just, अगर वो कुछ निकालता है ड्रॉर में से, जैसे मान लीजिए कपड़े निकालता है, कुछ निकालता है, मैंने उसे कभी नहीं रोका, क्योंकि मुझे पता था कि दीज आर, ये वो एक्सप्लोर कर रहा है, एक सेंसरी एक्टिविटी है.
आप उस एक्टिविटी को, जब वो कपड़े निकाल रहा है, इंस्टेड ऑफ उसको शाउट करने के, चिल्लाने के और आप उसको ये करो, आप क्या कर सकते हो, आप उससे बोल सकते हो, अगर उसको कलर्स आते हैं, क्या आई वुड से, कबीर कैन यू पिक ऑल द रेड क्लोथ्स, सो उसका एकदम से अटेंशन जाता था रेड, ओके रेड हियर एंड दिस इज पजामा, लेट सेपरेट पजामा। सो हर एक एक्टिविटी में ना मुझे वो जो कुछ भी करता था मैं उसको चैनलाइज कर देते थे आप। चैनलाइज, और हम कैसे सीख सकते हैं उसमें से, मतलब एक ही तरीका नहीं है सीखने का, कोई एक फिक्स वो नहीं है। सो क्योंकि मेरा ब्रेन हमेशा यही काम करता था कि आई वांट हिम टू डू, आई वांट हिम टू प्ले। सी किड्स की जॉब है प्ले करना, ऑनेस्टली वो उनका जॉब है, उनका, आप उनको रोक नहीं सकते हो, बट चीजें तोड़ना टॉडलर एज में, चीजें खराब हो